Hello, students. We are discussing the questions of Unit 9, which is diversity in life form. We'll be discussing the section B and section C of this topic. So the first question here is numerical taxonomy results suggest और हमें फिर चार options दिए गए हैं तो they want us to select which option is correct. So numerical taxonomy जब भी हम numerical taxonomy की बात करते हैं तो numerical taxonomy के जो bases होते हैं वो होते हैं on the basis of similarity and dissimilarity. Okay, so evolutionary relationship is not counted in numerical taxonomy. Phylogenetic relationship is also related to evolutionary relationships, hence it is not the right answer. Functional similarity can be the answer, but overall similarity is the most appropriate answer because the main basis of numerical taxonomy are division on the basis of separation on the basis of similarities and dissimilarity. Hence the answer is overall similarity. Now moving to the next question. Of the following species concept, which one emphasizes on reproductive isolation? मतलब यहाँ पे हमें कुछ species concepts दिए गए हैं, कुछ different concepts है जिनके basis पे species को define किया गया है, term species को define किया गया है. तो उनमें से कौन सा, इन सारे concepts में से कौन सा concept reproductive isolation के basis पे दो species को separate करता है? मतलब कौन सा इनमें से कौन सा concept ये कहता है कि अगर दो स्पीशीज हमारे पास हैं और दे कैन नॉट इंटरब्रीड, दे कैन नॉट ब्रीड विद ईच अदर, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, हेंस दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज. अगर हमारे पास दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो मतलब वो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं. तो इन बेसिस पे किस कॉन्सेप्ट ने डिफाइन किया है स्पीशीज को? सो द आंसर इज बायोलॉजिकल स्पीशीज concept. Okay, now the question says ribosomal RNAs, which means your rRNAs, are better molecules for phylogenetic studies because. तो हमें बताना है कि why rRNAs are selected for phylogenetic studies. Phylogenetic studies मतलब for evolutionary studies. Okay, so there are four options. First option is antiquity of protein synthesis process and moderately well conserved. Then they say they can be easily sequenced. They are present in 70S and 80S ribosomes. Then none of the above. So if we look into the details of the question, when they say antiquity of protein synthesis, मतलब कि बहुत टाइम से ये प्रोसेस चला आ रहा है, मतलब जो हमारी बहुत एंशियंट स्पीशीज हैं, जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड में बहुत प्रिमिटिव स्पीशीज मिलेंगी, तो वहाँ पर भी हमारा जो rRNA की प्रेजेंस देखी जाती है. फिर वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो बड़ा कंजर्व्ड है. तो दिस स्टेटमेंट एक्यूरेटली एक्सप्लेन्स कि हम rRNA को यूज क्यों करते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडीज में. बाकी ये जो क्वेश्चन है कि दे कैन बी इजीली सीक्वेंस्ड, तो दिस इज नॉट द प्राइमरी रीजन कि हम इसे क्यों rRNA को क्यों सिलेक्ट करते हैं फॉर एवोल्यूशनरी स्टडीज. देन द क्वेश्चन सेज दे आर प्रेजेंट इन 80S and 70S. दिस डज नॉट मेक एनी सेंस विद रेफरेंस टू योर evolutionary concept. Then none of the above is not the answer. The answer is antiquity of protein synthesis process is moderately well conserved. Okay. Okay. Now the question is one life history trait which is not a characteristic of very small sized organisms. Very small sized organisms they are talking about. So the points are traits are delayed age at first reproduction. मतलब जब उनका फर्स्ट रिप्रोडक्शन होगा तो वो थोड़े मेच्योर होंगे उस टाइम पे. सेकेंड इज अर्ली एज एट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज पे रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे. देन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट
एंड देन शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो अगर हम वेरी स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे बैक्टीरिया, जैसे प्रोटिस्ट, तो उनके केसेस में क्या होता है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, वी ऑल नो दैट। देन शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, वी ऑल्सो नो दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उनके एज में उनके केस में जो रिप्रोडक्शन होती है, जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन होती है, वो अर्ली एज में होती है या डिलेड। ये हमारा की पॉइंट है, इसके बेसिस पे हमारा आंसर आएगा। तो जो उनका जो हमारे स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, तो उनके केस में जो हमारा फर्स्ट रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसी एज में होता है, अर्ली एज में होता है, वो डिलेड एज में नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है कि वेरी क्विकली, एट अ वेरी अर्ली स्टेज, योर बैक्टीरिया, योर प्रोटिस्ट, ऑल दी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, दे स्टार्ट reproducing. Hence your answer is this. They are asking not a characteristic, so this is not a characteristic, so this will be your answer. तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा. Okay, so this will be your answer. Now next question. Okay, now the question says taxonomic system based on phenotypic similarities equally weighed and without regard to the evolutionary relationship is called. तो उन्होंने हमें पूरी डेफिनेशन दे दी है और हमें बताना है वो डेफिनेशन किस चीज को डिफाइन कर रही है. उन्होंने हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो वो क्या कह रहे हैं कि फिनोटिपिक सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, बट एंड ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, उनको सिमिलर वेटेज दी गई है. ओके, जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें हमने स्कोर कैलकुलेट किया है, तो स्कोर की कैलकुलेशन कैसे करी गई है, हर फिनोटिपिक कैरेक्टर को सिमिलर वेटेज दी गई है, और ये हमारा विदाउट रिगार्ड्स. लेकिन हमने किस चीज को कंसिडर नहीं किया है, हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है. तो ये किस टाइप का क्लासिफिकेशन होगा, इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टेक्सोनमिक ग्रुपिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं. तो देखिए, अगर फाइलोजेनी है तो फाइलोजेनी का तो मतलब ही इवोल्यूशन है. क्लैडिस्टिक है, ये भी फाइलोजेनी, क्लैडिस्टिक, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, ये भी इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बेसिस पे बात करता है. उसके बाद हमारे पास है क्लासिकल इवोल्यूशनरी टेक्सोनमी, इसके तो नाम में ही इवोल्यूशन आ गया है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू इन्वॉल्व एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स. तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. हमारा आंसर है फेनेटिक्स. फेनेटिक्स प्योरली फेलोजेनेटिक कैरेक्टर के बेसिस पे बात करता है. फेनेटिक्स को ही हम न्यूमेरिकल टेक्सोनमी बोल देते हैं, फेनेटिक्स को ही हम न्यूमेरिकल टेक्सोनमी कह देते हैं. सो योर आंसर इज फेनेटिक्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज name of Gossypium tomentosum. Gossypium tomentosum का नाम was proposed by Nutt and was validly published by Seam. Then they have given us a few options और हमें उसमें से करेक्ट नेम को आइडेंटिफाई करना है. सो व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग कि नाम क्या है, गॉसिपियम टोमेंटोसम. किस किसने प्रपोज किया जी, प्रपोज किया नट ने, लेकिन वैलिडली पब्लिश किया सीम ने. ओके, तो अब ये जो हमारा नॉमेनक्लेचर होता है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर कह लीजिए, तो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर का एक रूल होता है, जो रूल को हम बोल देते हैं ऑथर एक्स पब्लिशर. तो इस रूल के अकॉर्डिंग, ऑथर एक्स पब्लिशर रूल के अकॉर्डिंग, जो आपका नेम इस क्वेश्चन में जो नेम है गॉसिपियम टोमेंटोसम, वो किसने, उसका ऑथर कौन है, उसके ऑथर है नट, लेकिन उसके पब्लिशर, उसे वैलिडली पब्लिश किसने किया, वैलिडली पब्लिश मतलब सारे रूल्स फॉलो करके, जैसा पूरा कायदे से उसे पब्लिश किसने किया है, तो उसे पब्लिश किया है सीम ने. तो हम कैसे लिखेंगे, नट एक्स सीम. So the correct option is nut X seam. This is your option C. Option C is the correct answer. Okay. Now the question is a name, dash is a name that is given to a taxon when already some name is existing. When already some name is existing मतलब एक टेक्सॉन है जिसको आप दोबारा से नाम दे रहे हो, जबकि उसका ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर हो चुका है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, सुपरफ्लुअस, होमोनिम,
बेसोनिम, बेसियोनिम, देन टोटोनिम। तो अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो टोटोनिम क्या होता है कि आपका जो स्पीशीज एपिथेट है और जो जेनेरिक एपिथेट है वो दोनों सेम है, जैसे नाजा नाजा। ओके, तो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन दे हैव गिवन, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट द आंसर। देन वी हैव होमोनिम। होमोनिम में क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका नाम हमने सेम रख दिया है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइनिंग व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक है सुपरफ्यूलस और दूसरा ऑप्शन है बेसियोनिम। ओके, अब ये क्वेश्चन में ना थोड़ा और स्पेसिफिक अगर ये हो जाते तो हमें करेक्ट आंसर तक पहुंचना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान था। अभी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अगर आप सुपरफ्लुअस की नाम बात करो तो सुपरफ्लुअस के केस में क्या होता है कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नामकरण पहले हो चुका है, लेकिन जो न्यू ऑथर आ रहे हैं ही इज नॉट अवेयर दैट द नेम हैज बीन ऑलरेडी गिवन टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और वो अपना एक और नाम अनजाने में प्रपोज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम उसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। देन द अदर टर्म विच वी हैव इज बेसियोनिम। तो बेसियोनिम इज अ कंडीशन वेयर व्हाट हैपेंस कि क्लासिफिकेशन के दौरान क्या हुआ कि आपने उसे, या तो कोई नया रूल आ गया या तो आपने उन्हें रिक्लासिफाई कर दिया, मतलब वो ओरिजिनली प्रीवियसली आपका ऑर्गेनिज्म किसी और क्लास से बिलोंग कर रहा था, किसी और टेक्सा से बिलोंग कर रहा था, और विद स्टडीज पता चला कि ये टेक्सा ए से नहीं टेक्सा बी से बिलोंग करता है। तो अगर आप उसको उठाकर टेक्सा बी में रख देते हो तो नाउ यू हैव टू नेम इट अकॉर्डिंग टू टेक्सा बी, उसका पुराना नाम बदलना पड़ेगा। तो ऐसे केस में भी आप एक नया नाम देते हो जिसका ऑलरेडी नाम एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर हो चुका है, फिर भी आप उसे नया नाम दे रहे हो। तो बोथ ऑफ दीज कैन बी योर आंसर्स, बट ये हम थोड़ा सेफ के साथ चलेंगे और हम बेसियो निम को सिलेक्ट कर देंगे। पर अगर इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा और स्पेसिफिकली बनाया होता तो हम ज़्यादा एक्यूरेट आंसर दे सकते थे। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। तो आपको सबके डेफिनेशंस पता होने चाहिए। Okay, now the question is, if the author has not designated a single halotype, if the author has not designated a single halotype and has used all the specimen, then what it is called? So what kind of typification it is? So typification is a very important topic और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। So you just try कि आप PYQs देख के अपने सारी टाइपिफिकेशन के जितने भी टर्म्स यूज करे गए हैं आप उनके साथ जस्ट मेक योर सेल्फ फेमिलियराइज्ड विद देम। ओके, जैसे कि अब ये को टाइप है, ये एक ना पुरानी टर्म है, ये ना पहले यूज करी जाती थी, पर अब इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, तो अगर आपको नहीं पता होगा व्हाट इज अ को टाइप तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, तो अब ये बोल रहे हैं, तो coming back to the question, what they are saying कि author has designated a single has failed to designate a single holotype and used one specimen all specimen as then what it is called। मतलब उसने एक holotype नहीं दिया और इनफैक्ट उसने जितने भी सैंपल कलेक्ट करके लेके आया उन सबको ही यूज कर लिया फॉर डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इस ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये किस टाइप की टाइपिफिकेशन होगी? तो सबसे पहले टॉपोटाइप की अगर हम बात करें तो टॉपोटाइप उनको बोलते हैं, वो वाले सैंपल्स होते हैं, वो वाले स्पेसिमेंस होते हैं जो सेम लोकेलिटी से कलेक्ट करे जाते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन देम? वी यूज द टर्म टॉपोटाइप फॉर देम। देन वी हैव को टाइप। को टाइप मतलब जो हेलो टाइप का डुप्लीकेट होता है उसे हम बोल देते हैं को टाइप। पर को टाइप होने के लिए हेलो टाइप तो डेजिग्नेट करना पड़ेगा, पर यहाँ तो क्वेश्चन में दे आर सेइंग क्लियरली कि हेलो टाइप डेजिग्नेट नहीं किया गया है। ओके, सो योर को टाइप इज नॉट द आंसर, योर टोपोटाइप इज नॉट द आंसर। Then they are saying lectotype. What is lectotype? Lectotype is the condition in which what happens, your designated holotype is lost when you lose the holotype, और फिर उसकी जगह पर आप एक नया किसी को डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, किसी नए स्पेसिमेन को यूज करते हैं, तो उस टाइप की टाइपिफिकेशन को हम कहते हैं लेक्टोटाइप। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर बिकॉज दे हैव नॉट लॉस्ट इट, दे हैव जस्ट एक पूरे ग्रुप को ही, पूरे स्पेसिमेन जितने कलेक्ट करके लेके आए थे सबको ही हॉलोटाइप डिक्लेयर कर दिया है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिन टाइप। जब क्या होता है कि द ऑथर फेल्स टू डेजिग्नेट अ हेलोटाइप, और वो क्या करते हैं कि पूरा जो कलेक्शन होता है पूरे के पूरे कलेक्शन को ही एज हॉलोटाइप ट्रीट करने लगते हैं। सो वी कॉल इट सिन टाइप। ओके, okay, now the question is the bacterial pathogen which
is most detrimental to shrimp aquaculture. तो shrimp aquaculture जहाँ करा जाता है वहां पर एक पैथोजन होता है which is detrimental, which is most detrimental for your cultivation, for your shrimp culture. तो उसका हमें नाम बताना है, and they have given us 4 एग्जाम्पल्स. तो अगर हम सूडोमोनास की बात करें और फ्लैवोबैक्टीरियम की बात करें तो ये दोनों जो होते हैं ये फिश को इफेक्ट करते हैं, पीसी कल्चर में डेट्रीमेंटल होते हैं. एंड दिस माइक्रोकोकस ये हमारे श्रिम्प को अफेक्ट करता है, बट दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट पैथोजन. सिग्निफिकेंट पैथोजन होते हैं विब्रियो. विब्रियो की 3-4 मेन स्पीशीज होती हैं जो हम कंसिडर करते हैं कि आपके जो श्रिम्प एक्वाकल्चर होता है इसके केस में बहुत डेट्रीमेंटल होती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस क्रिएट करती है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ थ्रेट फॉर shrimp aquaculture. So your answer is option A, Vibrio species. Okay, now the question is abortion in ineffective biowin rhinotrichitis. सो ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है. तो ये किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है? ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है इसका जो प्राइमरी फॉर्म होती है वो होती है रेस्पिरेटरी फॉर्म. और प्राइमरी फॉर्म जो हमारी रेस्पिरेटरी फॉर्म होती है इसका सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस होता है एबॉर्शन. सो द आंसर इज रेस्पिरेटरी फॉर्म. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज रेप्टेलियन ऑर्डर स्क्वामाटा इंक्लूड्स, और इन्होंने हमें 4 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं. तो अगर आप देखें तो ये तो क्रोकोडीलिया के मेंबर्स होते हैं, ये नेटिव होता है न्यूजीलैंड का और राइकोसिफेलिया का मेंबर है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, नॉट द आंसर. टर्टल्स ये हमारे टेस्टुडिन्स के मेंबर होते हैं. दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर. योर आंसर इज स्नेक्स एंड lizards. They belong to the order Squamata. Okay. Now the question is, which of the following characteristics differentiate your Eubacteria from your Archaebacteria? तो हमें 4 characteristics दिए गए हैं, इसमें से हमें identify करना है which of the following differentiates your Eubacteria to Archaebacteria. मतलब कैसे, कौन सा character है which is basically responsible कि Eubacteria Archaebacteria से अलग होता है. हम किस basis पे हम decide करेंगे. So we are given 4 options. Circular nature of chromosome. This is wrong because both of them have circular nature of chromosome. Absence of nuclear membrane. This is wrong. Both of them show absence of nuclear membrane. तो ये कोई differentiating character नहीं था. Then presence of 70S ribosome. This is also wrong because the presence of 70S ribosome is found in both of them. देन द ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ म्यूरिन इन सेल वॉल. तो म्यूरिन आपका एक पेप्टिडोग्लाइकन होता है जो यूकैरियोट्स में बैक्टीरिया में, आई एम सॉरी, म्यूरिन आपका एक पेप्टिडोग्लाइकन होता है जो आपको बैक्टीरिया में जिसकी प्रेजेंस होती है, जो आपको बैक्टीरिया में मिलेगा, लेकिन इट इज नॉट फाउंड इन योर आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया में जबकि आपको क्या मिलता है? सूडोपेप्टिडोग्लाइकन्स. ऑलराइट, सो द आंसर इज दिस वन. This one is the differentiating character between your Eubacteria and Archaebacteria. Okay. Now the question is ecologically multicellular decomposers are. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें कीवर्ड हमारे लिए क्या रहेगा? मल्टी सेल्यूलर. तो मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स इनमें से कौन से हैं? तो अगर हम देखें सेप्रोट्रोफिक प्लांट्स, तो प्लांट्स तो टिपिकली सेप्रोट्रोफिक होते ही नहीं है, वो तो फोटोसिंथेटिक होते हैं. ओके, तो ये तो रूल आउट हो जाएगा. सेप्रोट्रोफिक एनिमल्स, तो अगर सेप्रोट्रोफिक एनिमल्स की बात करें तो जनरली टिपिकली मल्टीसेलुलर नहीं रहेंगे. मोनेरा की बात करें तो जो हमारे मोनेरा होते हैं वो भी क्या होते हैं? मेनली प्रोकैरियोटिक होते हैं नेचर में, तो वो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं शो करते हैं. फंजाई इज योर आंसर बिकॉज फंजाई क्या करता है? आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ब्रेकिंग डाउन दी ऑर्गेनिक मटेरियल. तो हमारी जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको फंजाई ब्रेक डाउन करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करता है, और इसलिए हम उसे डीकम्पोजर बोलते हैं. और उसका फंजाई का जो अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखेंगे तो वो सेप्रोट्रॉफिक होता है. सो ये आंसर इज ए, फंजाई. ओके, now the question is taxon differs from taxonomic
categories in taxon differs from the other taxonomic categories in first is representing individuals of a species, then being equivalent to any rank, containing a real organism and both B and C. तो अगर हम टेक्सॉन की डेफिनेशन देखें तो हम किसी भी टेक्सोनमिक ग्रुप को टेक्सॉन बोल देते हैं. ओके किसी भी टेक्सोनमिक ग्रुप को टेक्सॉन बोल देते हैं. तो डजंट हैव टू कंटेन स्पीशीज, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज. ओके देन can be equal to any taxonomic. This is how you define taxon. So this is true. But if you come to the point C, which says contain real organisms, so this is also true because real organism होगा तो ही तो हम उसे taxon के जैसे define करेंगे. So your answer is both B and C. So your correct answer is D. Okay, now the question says study of only one or few organisms for obtaining knowledge of a species. मतलब अगर हमें एक species के बारे में जानना है तो हम उस species के एक या कुछ organisms को पढ़ के और हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस species के क्या क्या मेन फीचर्स हैं. तो ये टाइप का कंसेप्ट किस, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये किस में फॉल करती है, ये डेफिनेशन इन चारों में से किसको डिफाइन कर रही है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इस केस में भी हम ये आपके टोपोलॉजिकल कंसेप्ट को भी डिफाइन करती है और जो हमारा टोपोलॉजिकल कंसेप्ट होता है उसे हम टेक्सोनमिक स्पीशीज कंसेप्ट भी बोलते हैं. तो दीज टू आर सेम. अब यहाँ स्पीशीज लिखा नहीं है, टेक्सोनमिक कंसेप्ट लिखा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन डाइसी है. पर आप टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट के साथ जा सकते हैं बिकॉज जनरली इसको टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट बोलते हैं, इसे टेक्सोनमिक स्पीशीज कंसेप्ट बोलते हैं. तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है. बाकी रेस्ट ऑफ द टू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन. सो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बट सेफ्टी के लिए आप टोपोलॉजिकल कंसेप्ट को सिलेक्ट करके आइएगा. ओके नाउ द क्वेश्चन इज न्यू सिस्टमैटिक्स. किसकी बात हो रही है? न्यू सिस्टमैटिक्स की. इज डिफर फ्रॉम क्लासिकल सिस्टमैटिक्स बाय, तो हमें 4 फीचर्स दिए गए हैं कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, हाउ व्हाट फीचर डिफरेंशिएट्स योर न्यू सिस्टमैटिक्स फ्रॉम योर classical systematics. So first is several morphological traits. That means maybe your new systematic has few more morphological traits. Then phonetic taxonomy, maybe phonetic taxonomy is included or biological parameters are included in your new taxonomy and they're not included in your classical taxonomy, or ऑल ऑफ द अबव. तो अगर हम न्यू सिस्टमैटिक्स की बात करें ना तो योर न्यू सिस्टमैटिक टर्म इंक्लूड्स एवरीथिंग. हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बी इट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, ऑल ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, या फिर हमारे पास जो भी सीक्वेंसिंग है उसके बेसिस पे जो भी हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, क्रोमोसोम इन्फॉर्मेशन है, तो इन सब को कंबाइन करके और फिर अल्टीमेटली जो क्लासिफिकेशन अब करी जा रही है, सब कुछ को रिक्लासिफाई कर रहे हैं. तो योर न्यू सिस्टमैटिक्स इंक्लूड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल बाय अबाउट अ स्पेसिमेन, और उस बेसिस पे दे आर क्लासिफाइंग दी ऑर्गेनिजम्स. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इट इज यूजिंग all the features which are available, all the information which is available.